میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں۔ میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں، پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں، آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر، پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں، تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے۔ میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کے کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے؟ میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے، ساری چیزیں ایک طرف، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے، دیکھیں جی کسی معاشرے میں جب سزا اور جزا ہی نہیں ہے، صرف غریب آدمی جیل میں جائے، طاقتور جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آر او دو، وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر، اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے۔ معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے، آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں وہ کرپشن کے خلاف کرپشن نہیں ختم کر سکتے۔ معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دینی۔ کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، اس کی جرت نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے۔ یہاں ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے، ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے اور آرام سے بیٹھ کے جناب میں لیکچر دے رہا ہوتے ہیں۔ میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے، میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کل جو ملکی سیاسی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپرٹ اسپیشل ہے، اور آج کے پینل میں شامل ہوں گے ایاز خان صاحب، رحمان اظہر صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، شکیل انجم صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کی۔ تو اس وقت جو ہجانی کیفیت پائی جا رہی ہے سینٹ الیکشن میں عبدالحفیظ شیخ کی شکست کے بعد، آج پرائم منسٹر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے 178 ووٹ لے کر ایوان کا اعتماد حاصل کیا، تاہم فیصل وابڈا کے استعفے کی وجہ سے، جبکہ اسپیکر اسد قیصر اجلاس کی صدارت کے باعث ووٹ نہیں ڈال سکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے پرائم منسٹر بنتے وقت 176 ووٹ لیے تھے۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جذباتی خطاب کیا، اپنی گورنمنٹ کی کامیابیاں گنوائیں، اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور پی ڈی ایم قیادت کو لفظی باؤنسز بارے۔ انہوں نے سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا کہ ایجنسی سے سیکرٹ بریفنگ لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ سینٹ الیکشن میں کتنا پیسہ چلا ہے۔ پرائم منسٹر نے الیکٹورل ریفارمز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت اور دھاندلی روکنے کے لیے الیکٹرانک مشینز کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے، عامر الیاس رانا صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ عمران خان صاحب پر ایوان کا اعتماد برقرار ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر نے نئی اننگز کا آغاز کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے اب؟ لیکن جی یہی بات ہے جو آپ نے آخر میں پوچھی کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اعتماد پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، اور وہ اوپن ووٹوں کی صورت میں موجود ہے، سیکرٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم بار بار کہتے تھے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور بجٹ یہ ہیں اوپن، اور آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں انتخابی اصلاحات کروں گا۔ جی آپ کو کس نے پہلے 2.5 سال میں انتخابی اصلاحات سے روکا تھا؟ آج آپ جس الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے لگایا تھا تو آپ نے کہا تھا پچھلا ان کا لگایا ہوا تھا اور اب ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے لگایا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک کام کریں گے۔ آپ کے اعتماد کو کیا ہوا؟ اور آپ جب کہتے ہیں کہ نیب نے مقدمے بنائے، میں نے تو چیئرمین نیب نہیں لگایا، تو جناب انہوں نے بھی اس وقت کی اپوزیشن سے پوچھ کے لگایا تھا، اور آج آپ بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن سے پوچھ کے لگایا تھا، تو پھر آج آپ کو چیف الیکشن کمشنر میں اتنی زیادہ قباحت کیوں موجود ہے؟ آپ کو نہیں گلے شکوے کرنے چاہیے، آپ قانون بنائیں، آپ انٹیلیجنس رپورٹس ہر صورت میں لینی پڑیں گی الیکشن کمیشن کو، ٹیلی فون ڈیٹے لینے پڑیں گے۔ تو آپ کیا کیس کھولنا چاہ رہے ہیں کہ جو کیا ایجنسی ساروں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہے؟ آپ کیا مقصد کہنا چاہ رہے ہیں اور کون کر رہا ہے یہ؟ کیا قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ آپ نے لکھ کے اجازت دی ہوئی تھی سب کی کہ ان سب کے ٹیلی فون آپ نے ٹیپ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو اجازت دینی ہے بطور چیف ایگزیکٹو اس کام میں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ نے آج یہ بھی کہا کہ نیب کو اور عدلیہ کو مجھ سے کیا چاہیے۔ دیکھیں نیب کہتا ہے ہمارے پاس عدالتیں کم ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے 130 عدالتیں بنا دیں۔ آپ مہینوں سے کیبنٹ میں اس فیصلے کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کمیٹی پہ کمیٹی بٹھاتے ہیں، اور پھر چند عدالتوں کے لیے آپ کو جج نہیں مل رہے۔ دیکھیں یہ کام عدلیہ نے تو نہیں کرنا، یہ کام تو ایگزیکٹو نے کرنا ہے نا، کہ جی بجٹ لائیں، محکموں کے دفتر لائیں۔ اب یہاں اسلام آباد میں لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی نہ وکیلوں کے چیمبر ہے اور عدالتیں دکانوں میں کھلی ہیں۔ آپ اس طرف آئیں نا، کون کہتا ہے کہ یہ کام آپ بند کر دیں؟
जनाब वज़ीर आज़म, असल इशू ही यही है कि आपका गुस्सा सिर्फ चंद पॉलिटिकल शख्सियात पे है, सिस्टम की इस्लाह पे नहीं है। अगर आप ये काम स्टार्ट में करते हैं, जैसे आपने कहा था कि जो PIA डूबी है, जो स्टील मिल डूबी है, बल्कि असद उमर ने तो कहा था हम 100 दिन में स्टील मिल चला देंगे, क्योंकि फार्मूले तो सारे आपने दिए थे 100 दिन में करने के, वो नहीं हो सके। तो फिर ठंडे दिल से सोचें कि क्यों ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि आपको हर दफा जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ याद आते हैं। तो शहबाज शरीफ की बात से मैं एक बात आपको जरा पेशीन गोई टाइप कर दूं कि जाहिर है कि जिस केस में हमजा की वो हो गई है जमानत, उसी केस में शहबाज शरीफ है ना, उनको उस एक ये दिया गया कि जी उनका टाइम ज्यादा हो गया है, फला हो गया है, लेकिन कभी एक चीज आई है कि शहबाज शरीफ ने ये पैसा पंजाब की सरकार से या फला मंसूबे की सरकार से अपने अकाउंट्स में शिफ्ट किया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, वो बनेगा चलेगा, लेकिन जब ये जमानत होनी है, ज़ाहिर हो जाती है, तो फिर बहुत बड़ा भौचाल आएगा। वजीर आजम साहब फिर उस तरह आपको बोलते हुए नजर आएंगे जैसे नवाज शरीफ के बाहर जाने पे बोले, आज भी बोले कि जी शीरी मजारी भी रोगी और इसको रुलाना आसान नहीं है। कि देख के भाई, वो आपका पंजाब गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड था, वो कौन लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे? आपने जिस डॉक्टर फैसल की आज बेपनाह कोरोना में फिर तारीफ की, ये वही थे ना जिनकी तस्दीक आपने की थी कि नवाज शरीफ को तकलीफ मौजूद है। तो भाई आप ही हमें वजीर आजम साहब आप बता दें, इस पूरी कौम को बता दें कि हम तो एक ही बात आपसे मुसलसल सुन रहे हैं, ना आप उसका हल निकालते हैं, ना आपने कोई इंतखाबी इस्लाह की है। तो भाई किसी तरफ तो आप आए ना कि जी हाँ ये मेरा फेलवर था, जैसे आपने कहा कि मैं IMF के पास जल्दी नहीं गया। तो भाई इंतखाबी इस्लाहात किसने रोकी हैं? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन और कानून की पाबंदियां खत्म कराएं, नई लगा दें और जो मर्जी चाहे कर लें। सही, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। रहमान अजहर साहब, चैलेंजेस तो बहुत हैं गवर्नमेंट के सामने इस वक्त। अब चूंकि ऐवान ने एतमाद का इजहार कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब पर एक दफ़ा फिर, तो आपको लगता है कि अब क्या तरजीहात होनी चाहिए गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की, क्योंकि अवाम को रिलीफ मिलना भी बहुत ज़रूरी है? दुआ, देखिए, एक तो वजीर आजम ने आज एतमाद का वोट हासिल कर लिया, ये एक पहला चैलेंज था वजीर आजम के लिए। और इसके बाद ये जो उनके हवाले से बात हो रही थी, जो अपोजिशन की तनकीद थी, और ये कह रही थी अपोजिशन के अब वो ऐवान का एतमाद जो है वो खो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो दबाव जो है वो कुछ कम होगा। लेकिन जहां तक तरजीहात की बात है, वो आपने भी जिक्र किया, और वो मेरा ख्याल है खुद वजीर आजम ने आज अपनी तकरीर में भी उसका जिक्र किया, अगरचे वो थोड़ा जरा बाद में इस पर जो है वो आए, और वो है महंगाई। तो महंगाई के हवाले से जो है वो उन्होंने, मेरा ख्याल है ये जो अवाम का जो बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, और इसी वजह से अपोजिशन को भी बहुत कुछ कहने का मौका मिलता है। तो इस बात का जो है वो इदराक उन्हें ऐसा लगता है कि खुद भी है, और यही वो मामला है, यही जो तरजीह है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो है वो होनी चाहिए। देखिए, महाज आराई जो है उससे हुकूमत को तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, गवर्नेंस जो है वो हुकूमत का करने का काम है। महाज आराई भी चलती रहती है, एक हाथ मुल्क के अंदर एक सियासी माहौल होता है, पाकिस्तान के अंदर आप इस चीज़ को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते कि क्या एक आइडियल माहौल हो जाएगा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जिसमें अपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्बत तनकीद करेगी और हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नेंस पर जो है वो ध्यान देगी। ये सियासी मामलात जो होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन इसको उस तरह से तरजीह नहीं बनाना चाहिए कि जहां पर जो है वो वज़ीर आज़म के सामने या हुकूमत के सामने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सिर्फ यही एक चीज़ रह जाए। बुनियादी काम हुकूमत का गवर्नेंस और महंगाई को कम करना, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में भी महाजराई तो चलेगी, लेकिन फोकस हुकूमत का जो है वो इस पर होना चाहिए। सही जी। अयाज खान साहब, आपको क्या लगता है फोकस कहाँ होना चाहिए? तरजीहात बेसिकली अब क्या रखेंगे इमरान खान साहब अपने सामने? अच्छा, ये बात तो ठीक है कि ये एतमाद का वोट लेने का फैसला, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। अगर ना लेते तो आज अपोजिशन को डिफरेंट बात कर रही होती कि जवान का एतमाद खो चुके और इनको अब वो ज़ाहिर है उन्हें डिफरेंट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट स्कोर, सियासत में पॉइंट स्कोरिंग ही तो होती है। फ्रेश गार्ड भी ले लिया, नई इनिंग्स का आगाज़ भी हो गया, वेरी गुड, सारा कुछ ठीक है। आज फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की। आज की तनकीद की मैं समझता हूँ कि इसकी दावत इलेक्शन कमीशन ने खुद दी। उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया, एक ऐलान जारी कर दिया कल, और जब आप इस तरह का काम करते हैं तो फिर दूसरों को कहने का मौका मिलता है कि जी आप गैर जानिबदार नहीं हैं, और नहीं करना चाहिए इस तरह। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब और या उनके मिनिस्टर्स ने जिस तरह से चढ़ाई की थी,
इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि बड़े तहम्मुल से उसका जवाब देते अपने काम से, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये रिवायत बन गई हुई है कि नहीं, बयान से जवाब देना होता है, अपने काम से आपने जवाब नहीं देना होता। ये एक तो रीज़न हो गया। उसके बाद तरजीहात बिल्कुल, अब ये बिल्कुल फ्रेश इनिंग्स में जो कुछ अभी तक हो गया, गलतियां हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आपको रिलीफ की तरफ जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे पीडीएम का बयानिया पहले से ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आम आदमी को नहीं फ़र्क पड़ता मईशत कितनी मजबूत हो गई, आपने वो करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म कर दिया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आम आदमी को जब वो चीज़ महंगी मिल रही होती है, उसके लिए पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, बच्चों के स्कूल्स की फ़ीस महंगी हो जाती है, सब्ज़ी दाल टमाटर हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो वो समझता है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। उसको उस वक्त मईशत मजबूत नज़र आती है जब उसकी अपनी मईशत ठीक होती है। उसकी मईशत आम आदमी की बर्बाद हो जाए और आप कहें जी हमने मईशत बहुत कमाल कर दी, ये नहीं मानेगा वो। मिनिस्टर्स भी, जैसे शेख रशीद ने भी इस तरफ इशारा किया कि तनख्वाहदार तबका बहुत बुरे हालात में है। तनख्वाहदार होना और थोड़ी सी तनख्वाह जब होती है तो उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जो बैठे होते हैं ना वहाँ ऐवानों में, उन्हें एहसास नहीं होता कि कोई चीज़ अगर 5 रुपए भी महंगी होती है तो एक 30,000 रुपए वाले के लिए क्या मसला होता है उन 5 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च करते हुए, क्योंकि वो तो जाहिर है मेजॉरिटी अल्लाह का करम है उन पे बहुत ज़्यादा, उनको तो $500 खर्च करते, $5,000 खर्च करते भी फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी 5 रुपए खर्च करते हुए भी उसको बहुत तकलीफ होती है। वो पता नहीं कहाँ से वो रोक के अपनी कोई चीज़ उसमें वो 5 रुपए लगा रहा होता है। और अभी जो हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो बिजली का पहला बिल आएगा उसके बाद देखिएगा फिर इन्हें पेट्रोल भी महंगा करना पड़ना। अभी 2 दफ़ा नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट में होता रहेगा पेट्रोल महंगा, आप कैसे रोकेंगे? तो मेरे ख्याल चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन तरजीहात अगर आप तय कर लें और ये फिर कहें कि नहीं हमने इस पे हर सूरत काम करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। कहीं से आगाज़ जरूर करना चाहिए। ये रहमान की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अदराक है, लेकिन उस अदराक का फ़ायदा नहीं है, उसको प्रैक्टिकली हमारे सामने आना चाहिए। फिर हम बिल्कुल तारीफ करेंगे कि वाह वाह प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा कमाल कर दिया। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, वज़ीर आज़म साहब ने आज का जो खिताब किया है वो खिताब में कोई नई बात नहीं की, उन्होंने वही पुरानी बातें थीं। और आज के खिताब में आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगता था वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने जो उनके अरकान असम्बली हैं और जिन 16 वोटों का वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर वोट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया, और आज वो उनके साथ भी बैठे हुए थे उसी ऐवान में जिस ऐवान से उन्होंने एतमाद का वोट लिया। और वोट लेने के बाद जो तकरीर की उसमें हमें जो तरजीहात दिखाई दी हैं वज़ीर आज़म साहब की, वही तरजीहात हैं जो पहले दिन से थी उनकी। उन्होंने अपने तकरीर के दौरान जो है वही अपोजिशन के हवाले से बातें की हैं, वही नवाज़ शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा कि फिर इनको कन्विक्ट किया जाए। तो कन्विक्ट इदारों ने करना है, वज़ीर आज़म साहब ने जो मदद देनी है दे दें, तो जो कानून और आइन के मुताबिक होगा इदारों ने वही फ़ैसले करने हैं। और जब आप देखते हैं कि इदारे आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, इलेक्शन कमीशन की मिसाल आपके सामने है, तो वज़ीर आज़म साहब न सिर्फ ख़ुद तनकीद करते हैं बल्कि उनकी पूरी काबीना बैठ कर जो है इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करती है। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि एक रिज़ल्ट जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आया है वो ठीक है, और अगर एक में आप हार गए हैं तो गलत हो गया, हालांकि दोनों जगह पर इलेक्शन कमीशन तो एक ही तरह का काम कर रहा था। तो अगर वज़ीर आज़म साहब इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर इदारे भी हक बजानिब होंगे कि वो अपना दिफा करें। रहा सवाल वज़ीर आज़म ने महंगाई का किया है, तो महंगाई से तो आवाम की चीखें निकली हुई हैं, और वज़ीर आज़म की तरजीह जो है वो बिल्कुल आवाम होनी चाहिए थी। उनको बड़ा सुनहरी मौका मिला था हुकूमत करने का, उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश नहीं था, बिल्कुल खुला मैदान था, तमाम इदारे उनके साथ थे, हर तरह का ताउन हासिल था। अपोजिशन 2018 के अगर आप अपोजिशन देखें तो अपोजिशन
ना होने के बराबर थी। उन्हें जी, किसी किस्म का कोई टफ टाइम नहीं मिला। लेकिन वजीर आजम साहब ने अपनी बयानबाजी, अपनी पॉलिसी की वजह से अपोजिशन को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि आज हमें अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत जो है वो कमज़ोर दिखाई देती है। और जो PDM के अहदाफ थे वो देखें वो किस खूबसूरती से जो है वो हासिल करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी जो उन्होंने हासिल की है वो सेनेट के इंतखाबात में, जबकि हुकूमती उम्मीदवार जिसके बारे में तस्वुर नहीं किया जा रहा था और हुकूमत भी ये कह रही थी, उसके वज़रा भी कह रहे थे कि हम किसी सूरत ये सीट नहीं हारेंगे, लेकिन वो सीट हार गए। और उसके बाद रहा सवाल आवाम का, तो अब भी वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम है, 2.5 साल का वक्त है कि वो आवाम के बारे में सोचें, वरना उनकी जमात का ये हाल होना है कि उनके टिकट लेने के लिए लोग जो है वो तैयार नहीं होंगे। और आपने देख लिया कि लोगों ने अभी से प्लानिंग कर ली है। जो बात मार्केट में आई है कि लोगों का ये कहना है कि हमें अगर आप एश्योर करते हैं कि टिकट दिया जाए PMLN का या पीपल्स पार्टी का, तो वो अपना वोट जो है हुकूमत के मुखालिफ देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमने इसी वजह से वोट दिया है। ठीक हो गया जी। इलियास, अगर आप सीक्रेट हो जाता तो फिर मेरे ख्याल फिर हालात जो है फिर मुख्तलिफ होने थे। यार अब आप गैर आईनी बातें ना करें यार, तो फिर शायद हालात सीक्रेट कैसे हो जाता है यार? आईन गैर ऐसी नहीं है इसकी जी। हम एक डिबेट कर रहे हैं आइन के, हम ये कह रहे हैं कि हो जाता, हम ये नहीं कह रहे कि करवाया जाए, जैसे वजीर आजम इंसिस्ट कर रहे थे नहीं, क्यों कि कराया जाए हर सूरत में। ये बताएं क्यों हो जाता? वो फिर तो वो भी डरपोक हुए। सीक्रेट में आते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नजरिया कुछ और हो जाता है। जब ओपनली बात होती है तो फिर उनका नजरिया ही बदल जाता है। फिर इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं शकील अंजुम साहब। जी इलियास साहब, हम नहीं मैंने एक बात की है कि अगर हो जाता तो फिर हालात मुख्तलिफ होने थे। मैं ये नहीं कह रहा था कि कराया जाए, तो होना वही है जो आइन और कानून के मुताबिक होना है। जी इलियास साहब, बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पहली मरतबा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था। इनको तमाम चीज़ें पता है। अब इनसे 100 दिन का प्लान तो इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं था ना। इनके पास जो कह रहे थे कि जी हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो तमाम इसको बताएंगे कि किस तरह महंगाई को कंट्रोल करना है। तो ये महंगाई को कंट्रोल करना इनके बस की बात ही नहीं रही। 2.5 साल गुजर गए, ना कर सके। आप तो देखें, पहले तो होती हैं चीज़ें महंगी होती हैं, अब तो चीज़ें गायब हो गई मार्केट से। देख लें कि शॉर्टेज है। जब ये कहते हैं कि जी हमें बताया ही नहीं जाता, हमारे महकमे हैं जो वो बताते ही नहीं है कि गंदम की पैदावार कितनी होगी, फिर उसके तखमीने गलत साबित होते हैं, इस तरह चीनी की। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कंट्रोल करना, जैसे वो कहते हैं ना कि जी चोर लूटा गया मुल्क में, ये किया, सियासतदानों ने लूटा, नाम भी बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होकर खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इस महंगाई को तो कम से कम कंट्रोल करें। इनकी सबसे बड़ी तरजीहात में ये होनी चाहिए चीज़ें कि आवाम को बुनियादी सहूलियात मिलें और उनको जो महंगी चीज़ें मिलती हैं उनकी परचेजिंग पावर नहीं है इस वक्त लोगों की। बिल्कुल सही। आप देखें हमारी पर कैपिटा इनकम गिर गई। हमारे जो चीज़ें बिल्कुल वो ठीक कहते हैं कि जी पुराने जो लोन्स लिए उनको रीपे बैक करने के लिए इनको बड़े और कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल हैं तो इनको मैनेज करना इनका काम है। अब इस्लाहात लाना जो है इकॉनमी में, जो बिल्कुल है कि जो इफेक्ट्स हों, जो कहते हैं कि इकॉनमी में बेहतरी आई तो आम आदमी तक उसके असरात आने चाहिए। जाहिर है कि इस वक्त चीज़ें जो महंगी मिल रही तो इसकी जो रसद और जो तलब का जो असूल है इसको बरकरार रखने के लिए जो एडवाइज़र रखे हैं उनके से काम लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ये नहीं कि कमरे में बैठ के ब्रीफिंग ले लें, आवाम से पूछें कि आवाम की कितनी चीखें निकली महंगाई की वजह से। तो ये जो दूसरी सूरत हाल है इकॉनमी जो पॉलिटिकल जो वो इस्लाहात लाने, रिफॉर्म्स लाने के लिए इनको किसी ने रोका थोड़ी है। इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स करते इनके पास है, एजेंडा है, तो एजेंडे पर अमल दरामद करें। इसी तरह रुके रहेंगे तो 5 साल गुजर जाएंगे। ठीक है जी। रहमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये बात हो रही है कि क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते और रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, मेरा ख्याल है एक आम चीज़ ये है कि ये जो महाजा राय होती है इसका आमतौर पर फ़ायदा जो है वो अपोजिशन ही उठाती है। और हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सियासत तो करनी है लेकिन इस महाजा राय में जो है वो किस हद तक जाना है। तो पाकिस्तान में जहाँ तक इस्लाहात की बात है, मेरा ख्याल है हमने बड़ी जल्दी भी इस्लाहात होती हुई देखी हैं। तो अभी भी वक्त है और वजीर आज़म के पास, हुकूमत के पास मौका है कि एक फ्रेश स्टार्ट करें और नए सिरे से जो है वो अपने अहदाफ का तयन करें और उन अहदाफ को लेकर चलें ताकि जो कुछ भी अभी हो रहा है इसका जो हुकूमत ने अब अगले इलेक्शन में जब जाना है तो उससे पहले जो है वो कुछ काम कम से कम जो है वो हुकूमत जो है वो करके जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी वक्त है, आपको अपने अहदाफ मुकर्रर करने पड़ेंगे, अपनी तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी। अगर इदराक है तो ज़ाहिर है फिर प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए, तभी फिर ये मामलात आगे चल सकेंगे। जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि अब तरजीहात में रिलीफ की तरफ जाना शामिल होना चाहिए गवर्नमेंट के। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा, मुल्की सियासत में हलचल है, ऑपोजिशन के बारे में हम सवाल रखेंगे कि ऑपोजिशन अब क्या करने जा रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज पीडीएम जमातों ने कौमी असम्बली के इजलास से बॉयकॉट किया। ताहम जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली और मोहसिन दावड़ ऐवान में आए, मगर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद अपोजिशन मैदान में आई। मौलाना फजल रहमान ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू की और एतमाद के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एक बार फिर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म को उन्होंने जाली कहा। मरियम नवाज ने गवर्नमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि अरकान असम्बली से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। प्राइम मिनिस्टर अपना सामान बांध लें, अब उनका जाना ठहर गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को गवर्नमेंट का ड्रामा करार देते हुए एक बार फिर ये ऐलान किया है कि कब, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसला पीडीएम करेगी और हम बताएंगे कि कब तक स्पीकर कुर्सी पर बैठा है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अभी जिस तरह की बयानबाजी का सिलसिला जारी है पीडीएम की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, ये करने क्या जा रही है ऑपोजिशन का? आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या एजेंडा हो सकता है? अच्छा, वो तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने की बारी होती है, अपने वो मेंबर्स भी करा लेते हैं उसमें, और फिर जैसे ही वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, आज एतमाद का वोट लिया तो असम्बली फिर जाली होगी। मुबारक हो कि कल तक असम्बली जायज़ थी। जब यूसुफ रज़ा गिलानी हुए उसमें अब्दुल गफूर हैदरी हो गए, अपने लोग हो गए, तब तक असम्बली बड़ी अच्छी थी, जायज़ थी। आज अचानक वो जाली हो गई। मतलब बिना वे मौलाना को कहना चाहिए कि हराम ही हो गई, पहले हलाल थी। उसके बाद ऑपोजिशन अब आराम से, अब जो जिस पिच पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने गार्ड लिया ना, ये बड़ी मुश्किल पिच है। इस पे टर्न भी बहुत ज़बरदस्त शार्प टर्न होनी है, अनइवन बाउंस भी रहेगा, कोई पता नहीं कब गेंद कहाँ पड़ के कहाँ आ जाए। बाउंस भी इसमें अचानक अनइवन बाउंस होगा तो पता ही नहीं चलेगा आपको गेंद कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऑपोजिशन परफॉर्म नहीं करने देगी। अब जो पूरी कोशिश अपोजिशन की होगी, एक तो स्पीकर का इशारा दे दिया, वो अदम एतमाद लाने वाले हैं। उसके बाद पंजाब में बड़े जोर शोर से, कल बिलावल आ भी रहे हैं, हमजा शहबाज से भी मुलाकात करेंगे, वो जो पंजाब में कोई चेंज की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुनने में ये आया कि इस वक्त तक हमजा और शहबाज शरीफ साहब रुकावट हैं, बाकी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे आ चुके हैं। और मतलब पंजाब हुकूमत में कोई तब्दीली जी यकीनन वो वहाँ भी अदम एतमाद की एक सूरत बनने जा रही है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें तय हो गई तो उसके बाद फिर पंजाब पे अटैक किया जाएगा। और ये इमरान खान साहब को समझ लेना चाहिए कि अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया, ऑपोजिशन वहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, तो फिर बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। उनको फिर ये तकरीरें रह जाएंगी उनकी, फिर काम वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए पंजाब पे सबसे पहले फोकस कर लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी से। जी रहमान असर साहब, आपका टेक क्या है? जिस तरह अयाज खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट अब सामने है ऑपोजिशन के, पीडीएम के, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि ऑपोजिशन की तरजीह क्या होगी, ऑपोजिशन क्या करने जा रही है। दुआ ऑपोजिशन का एक ही काम होता है कि वो हुकूमत को काम ना करने दे। तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन अब सारा जोर जो है वो इसी तरफ लगाएगी। देखिए, अगला जो शो डाउन है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, वो तो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब है। तो मेरा ख्याल है वो भी अब 12 तारीख को जो है वो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो है वो क्या बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के मुकाबले का ऑपोजिशन को पहले से अंदाज़ा था कि आज के मुकाबले का जो नतीजा है वो क्या आना है। इसी वजह से उन्होंने बाइकआउट का जो है वो फैसला किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हफीज़ शेख के इलेक्शन के अंदर जो है वो देखी, वो हफीज़ शेख का बतौर कैंडिडेट जो है वो को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे शख्सियत। और बहुत सारे लोगों से इस इलेक्शन के बाद जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि गिलानी साहब की जो जीत है उसकी वजह यही थी कि एक तो पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी थी और दूसरा गिलानी साहब एज ए कैंडिडेट जो है वो तगड़े थे। आज के भी एतमाद के वोट में आपको, क्योंकि आज इमरान खान साहब खुद खड़े थे, वो खुद मजबूत हैं, जो है वो सियासी तौर पर जो है वो, इसलिए ये भी कहा जा सकता है, ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में उनके साथ खड़े नहीं हुए, आज क्योंकि इमरान खान का मामला था तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो ऐवान के अंदर जो है वो नजर आए। तो अपोजिशन ये हिंट्स ड्रॉप कर रही है कि वो जहां पर थोड़ा कैंडिडेट या जो पॉलिटिकल
जो टारगेट है वो थोड़ा सा वीक हो तो वो वहां पर हिट करेंगे, और वो बड़ी ऑब्वियस सी चॉइस नजर आती है। एक तो संजरानी साहब हैं, वो मेरा ख्याल है एक नया चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, उनको अगर वो जितवाना चाहती है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन का भी जो है वो इलेक्शन है, उसके लिए एमक्यूएम मैदान में आ चुकी है और वो मुतालबा कर रही है कि वाई नॉट। तो दूसरा जो है वो ऐसा पॉलिटिकल टारगेट जो है वो अपोजिशन को मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल में जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर ये काम चौधरी परवेज इलाही के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की एक तो अपनी सीटें हैं, दूसरा फिर उनके अपने ताल्लुकात भी हैं। तो अब ये ऑपोजिशन के लिए कि क्या वो चौधरी परवेज इलाही को इस बात पर आमादा कर पाते हैं या नहीं, ये आई थिंक ये इसका भी जवाब नहीं दिया जा सकता। जी आमिर साहब। वैसे रहमान अहमद साहब के नुक्ता फ्री पॉइंट पे गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए, क्योंकि वो कैंडिडेट मजबूत नहीं थे हफीज शेख, जिसके लिए वजीर आजम दिन रात एक किए हुए थे, और वो जो खातून थी वो बहुत मजबूत उम्मीदवार थी पीटीआई की, जो सेनेटर बन गई और पीएमएलएन। राणा साहब जो आप इलेक्शन लड़ना होता है तब सिचुएशन डिफरेंट होती है, जब बंदा किसी को लड़वाता है तब मुख्तलिफ होती है। जी जी, वो लड़ना और लड़ाना एक, मैंने तो बात की है कि आपने क्या कमाल पॉइंट दिया है, हुकूमत को अडॉप्ट करना चाहिए, वरना काम का खराब हो रहे हैं इतने दिनों से। और बात इशू दो तीन चीजों का है, एक पंजाब का फोकस हो गया, वो होना है अल्टीमेटली होना है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो जो पहले इशू में बात हो रही थी ना कि इलेक्शन कमीशन को, जो अयाज साहब ने बात की थी, ध्यान नहीं देना चाहिए था। हाँ, इलेक्शन कमीशन को जो करना चाहिए फैसल वागड़ा के केस का फैसला करे, वो जो आया हुआ ना फॉरेन फंडिंग का केस, उसका फैसला करे, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। खाम खा इतना लंबा काम हो रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर को बड़ी एक महसूस हो रही है, शेख रशीद साहब ने एहसास कराया कि महंगाई बहुत है। भाई 2.5 साल आपने मार्केट कमेटियों में पॉलिटिकल बंदे लगाए, अब आपको ख्याल आया कि ये तो सारे चोर थे और सारे पीटीआई के वर्कर थे, आपने सारे कर दिए एकदम। अब आप नए ईमानदार ढूंढ रहे हैं। भाई वो लोगों का क्या कसूर जिन्होंने पंजाब में मार्केट कमेटियों में अजनास का, सब्जी का, हर मंडी का काबू इनके पास होता है। आपने 2.5 साल किस पे जाया किए भाई? आपने क्यों नहीं सोचा कि आपके वर्कर, ओहदेदार, जिलाई वजीरों के रिश्तेदार, विगोकार पूरे पंजाब में मार्केट कमेटियों के हेड थे। जिस तरह आपने एकदम पंजाब के बल्दियाती इदारे फारिग कर दिए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो खिलाफ कानून किए थे, आप लाते बल्दियाती इदारे, आप मार्केट कमेटियां ठीक लाते, आप इलेक्शन कराएं, आप केपी में क्यों जा रहे हैं, हट रहे हैं, आप लाएं यहाँ पे पंजाब में बल्दियाती इदारे, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि जी आपकी ग्रिप भी ठीक है, और जिन लोगों को ला रहे हैं आप टाइगर फोर्स लाए थे वो कहाँ गई? तो उसकी कोई वैल्यू कानूनी तौर पे मौजूद नहीं थी। आपको तो चलना करना चाहिए। एक पॉइंट मैं और बता दूं, ये कुछ दिन के बाद स्कैंडल आएगा, वो स्कैंडल आएगा ये जो, और ये प्राइम मिनिस्टर का बेहतरीन प्रोग्राम है हेल्थ कार्ड पंजाब में दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये आम आदमी की फलाह का काम है, लेकिन हमारे यहाँ आम आदमी से लेके और अहम आदमी का चोरी मिल के करते हैं सब। अब आप देखें 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए किसी गरीब आदमी को मिल रहे हैं कार्ड के लिए, उसने सिर्फ अस्पताल से गेम डालनी है। और केपी से कुछ रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर के पास, मेरी इत्तला के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, रेगुलेटर के पास आ गई है कि वहाँ हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कार्ड रख लिए, हर महीने की आपको इतने पैसे नकद मिलते जाएंगे, आपको तकलीफ है या नहीं। इसका काम शुरू हो गया। इसका तदारुक बहुत जरूरी है। जब आप एक तरफ एक आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं जिसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो वो रोटी पहले खाएगा या दवाई खाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ तवज्जो करनी होगी। आपको जब तक आम आदमी की जो तकलीफ है वो प्रेस रिलीजों से निकल के, इजलासों से निकल के, और स्पेशल ब्रांच के लोगों से, यूटिलिटी स्टोर्स पे, ये शौकत अली भी यही काम करता था, उन तक आप जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, नब्ज पे नहीं पहुंचेंगे, आप नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी तकरीर करते। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन अपनी हिकमत अमली में कामयाब जा रही है और बिल्कुल कामयाब है, और उसने हुकूमत को 2.5 साल के दौरान कोई भी काम नहीं करने दिया, सिवाय वज़ीर आज़म साहब के काबीना के इजलास, कमेटियां बनाने के हवाले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकी है हुकूमत। जो आम आदमी के लिए काम करना था हुकूमत ने, उसमें बुरी तरह नाकाम साबित हुई है हुकूमत। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। इस हुकूमत ने कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया अभी तक मुल्क के अंदर, जिसकी बुनियाद पर अगले हुकूमत जो है अगले इलेक्शन में जाएगी या आवाम को बता सकेगी कि हमने जो है मुल्क के अंदर कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके समरात आए हैं, आवाम को उससे उसका फ़ायदा हुआ है। अब
سب سے زیادہ فوکس جو ہے حکومت کا ہیلتھ کارڈ پر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ہیلتھ کارڈ کو جو ہے وہ شروع کر دیا جائے پنجاب میں، اور حکومت جو ہے اگلے الیکشن میں یہ کہہ سکے کہ اس نے جو ہے عوام کو ہیلتھ کارڈ کا تحفہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو اپوزیشن نے جو اس کے اہداف ہیں وہ آہستہ آہستہ حاصل کرتی جا رہی ہے اور حکومت کو پینک کر رہی ہے۔ اب آگے آ جانا ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن، تو اگر نمبر گیم دیکھیں تو پھر اپوزیشن کے پاس جو ہے 6 ووٹ زیادہ ہیں، اور جبکہ حکومت نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی جو ہے اناؤنس کر دیا ہے، جبکہ حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ حکومت اخلاقیات کا سبق دیتی ہے۔ اگر اپوزیشن یہ کام کرے تو پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اربوں روپے لوٹ کے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، ایجنسیز سے پوچھ لیں۔ اب جب حکومت نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے اگر کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے تو پھر اس کی جیت کے لیے ایفرٹ بھی کی جائے گی، اور وہ ایفرٹ کیا ہوگی؟ وہ ایفرٹ یہی ہوگی نا کہ دوسروں کے لوگوں کو توڑا جائے، دوسروں کے اپوزیشن کا جو ووٹ ہے وہ خریدا جائے، ادروائز تو کوئی اور فرشتے آ کر تو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ نمبر گیم میں تو حکومت جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین الیکٹ کرا سکے، تو ایک ہی طریقہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کو یا پھر ڈرایا دھمکایا جائے، اور پھر جو ہے اپنے امیدوار کو کامیاب کرایا جائے، پھر یہ کہیں گے کہ ہماری اخلاقیات کی فتح ہے۔ ورنہ جو اگر یہ کام دوسرے لوگ کریں تو پھر ان پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ سیاسی المیہ ہے ہمارا، ہر جماعت، ہر سیاستدان ایسے ہی اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، بیٹھ کے ہم بھی یہی دیکھتے ہیں اور یہی سنتے ہیں۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیے یہ اپوزیشن کے پاس بالکل ایسی بات ہے، پہلے جو تھے نا اپوزیشن کے پاس موقع کم تھے، اب بہت سارے موقع ہیں۔ اب دیکھیں ڈسکا کا بھی الیکشن ہونا ہے، اس کے لیے پھر ایک ٹف ٹائم ملے گا، اور اس دفعہ جو الیکشن ہوگا اس میں بھی دیکھیں گے۔ پھر پنجاب گورنمنٹ کی جو ان ہاؤس چینج کی جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اپوزیشن کی جو کل سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ چینج کریں گے، جہاں سے بھی وہ ہو سکے گا وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پورے اقدامات کریں گے، یہاں سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی۔ تو یہ جو تمام کام ہیں تو اپوزیشن کے لیے اب بہت ہے، پھر لانگ مارچ ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ اسی طرح یہ جو کر رہی ہے اپوزیشن اس وقت، تو اس کے لیے جو مختلف محاذ کھولے ہوئے ہیں، تو اس طرح گورنمنٹ کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا احتساب کا عمل، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اب گورنمنٹ وہ بھولی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ صرف اپنے ڈیفنس پر لگی ہوئی ہے اس وقت، کہ اپنا دفاع کرے، کسی طریقے اپنی بچت کرے۔ اب دیکھیں پنجاب میں اگر ان کو شکست ہو جاتی، گورنمنٹ چینج ہو جاتی، تو تمام جو صورتحال ہے وہ چینج ہو جائے گی اس میں، کیونکہ ان کے پاس اتنی نمبرز گیمز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن الیاس ایک کام ہو سکتا ہے جی کہ جو کارڈ اپوزیشن کھیلنے جا رہی ہے وہ اگر عمران خان صاحب پہلے کھیل گئے تو عمران خان صاحب دیکھیں گے سر صورتحال بالکل آپ دیکھیں سچویشن چینج ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو کھیلنا چاہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں آپ، بالکل اشارے تو جا رہے ہیں ادھر ہی۔ اگر وہی ایک بندے کو اگر چینج کر دیتے تو اس کے بارے میں تو بڑی افواہیں اڑی ہوئی تھی کہ جی سینٹ کے الیکشن کے بعد کچھ نہ کچھ پنجاب میں ضرور چینج ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ادھر بھی ٹرن لیتے ہیں کہ نہیں اپنا بندہ چینج کرتے ہیں کہ نہیں چینج کرتے ہیں۔ شکیل انجم کو چاہیے کہ سرائکی میں ان کے لیے اپیل کر دیں، بالکل اس میں وہ ہے، لیکن یہ بھی جا رہا ہے مگر آج کی تاریخ میں وہ جو اتحادی ہیں پنجاب والے وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل کہ وہ ان کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا؟ جو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس بارے میں اگر موو ادھر سے ہو گئی تو پھر سچویشن چینج ہو آپ دیکھ لیں ادھر گورنمنٹ کے بھی تو 16-17 بندے ان کے ساتھ جا کے ملے ہوئے ہیں، جا کے جدھر بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ کافی دیر سے ملاقاتیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں سائڈوں پر۔ تو یہ ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو جو ہے، جو جس طرح کہتے ہیں ہمارے فیصل بھائی کہتے ہیں کہ اسکرپٹ لکھا ہوا اس پر کام ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر تو آج وہ بالکل اس پر کوئی نہ کوئی کام ہوگا، اس کے ریزلٹس آنے والے دنوں میں آ جائیں گے، کیونکہ اب میدان جو آ رہا ہے، دیکھیں بلاول بھٹو صاحب خود ملنے آ رہے ہیں حمزہ شہباز سے، تو ظاہر ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس بارے میں جیسے کہہ رہے تھے کہ نا کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اب ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ۔ بالکل جی، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو، باز گشت تھی لیکن اب کچھ ہونے جا رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مزید کیا سیاسی ملکی معاملات ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، اور آج ہمارا تیسرا سوال ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھلاڑیوں اور متوالوں میں لڑائی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کارکنوں کا لیگی رہنما احسن اقبال پر جوتے پر حملہ۔ اسی مناسبت سے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ ملکی سیاست میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक में आज पीटीआई कारकुनों और लीगी रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई देखने में आई। प्राइम मिनिस्टर से इजहार यकजहती के लिए आए पीटीआई कारकुनों ने मुबैना तौर पर लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा से बदतमीजी की, जिसके बाद धक्कम-पेल और हाथापाई शुरू हो गई। और इस दौरान एहसन इकबाल साहब पर जूते से हमला किया गया, मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ मार दिया गया, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से बदतमीजी की गई। पीडीएम ने हंगामे आराई की शरीफ मजम्मत करते हुए गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि अगर हमने ये काम शुरू कर दिया तो पीटीआई अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेगी। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने लीगी रहनुमाओं को हंगामा आराई का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि मुल्क लूट कर जायदादें बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये आप जिस तरह का मामला हुआ है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, मुल्की सियासत में इखलाकियात का तो जनाजा ही निकल गया है। हम जिम्मेदार किसको कह सकते हैं, किसको ठहरा सकते हैं? बैसियत कौम तो हम सब के लिए ये बायस शर्म है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप एक साइड पे खड़ी है। वीडियो सामने आ चुकी हुई है सारी कि पीटीआई के वर्कर्स आए हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की, वहाँ हंगामा आई हुई और जो कुछ हुआ वो सब कुछ हम स्क्रीन पे दिखा चुके हैं। और उसके बाद अजीबोगरीब काम किया है शिबली फराज साहब ने कि उल्टा PMLN की क़यादत पे सारा मसला डाल दिया। तो जब उन्होंने बात सुननी नहीं, माननी नहीं, तो फिर इसके ऊपर यही हो सकता है कि जो फिर जवाबन आ रहा है कि फिर वो कह रहे हैं कि फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। तो हम लड़ाई को कहाँ ले जा रहे हैं? ये सियासी लड़ाई पार्लियामेंट में होती है, ठीक है, वर्कर्स बमाए वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, कभी कभार लड़ाई हो जाती है। अब लीडर्स एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक जत्था आके उसके ऊपर हमला कर दे और उस हमले को जवाब भी वफाकी वज़रा दें, मेरा ख्याल है अच्छे आदमी शिबली फराज साहब, उनको सोचना चाहिए एक दफा दोबारा, उनको तमाम एविडेंस देखने चाहिए कि हम किस चीज को बनाने जा रहे हैं। कल खुदा न खास्ता पीटीआई की क़यादत कहीं खड़ी हो और इसी तरह लोग हमला करेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे कि अगर आज ठीक था तो कल ठीक होगा। हम आज भी मजम्मत करते हैं जब भी किसी सियासी लीडरशिप पे बिल्कुल जी, वो कभी भी दुरुस्त नहीं होता और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सही। शकील अंजुम साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा अपना दुखड़ा बयान कर दूं। खान साहब ने सराइकी की बात की, सराइकी इलाके की, तो खान साहब वो जो लॉलीपॉप दिया गया था सूबे बनाने का वो तो ना हुआ। जो सेक्रेटेरिएट बनाया था उसके भी 5 महकमे ख़त्म करने की समरी वजारत ख़जाना ने भेज दी, वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है। रिकॉर्ड अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ तमाम महकमों का, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। अब रहा सवाल ये वाला कि क्या हुआ आज, तो इंतहाई अफसोसनाक अमल था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से ये तर्ज़ अमल बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ था, लेकिन आज हमने देखा कि जो तर्ज़ अमल ख़त्म होने में कई दहाइयाँ लगी थी, आज फिर से वो हमें देखने को मिला है। कल को जब पीटीआई के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई ना कोई फिर वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से वहाँ पर ये मैदान जंग लगा, तो अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी और उन्हें ये कहना था कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल उसका दिफा किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो महाज आराई है ये न सिर्फ हमारे सियासी कल्चर में परवान चढ़ रही है, बल्कि आप ये देखें कि इनको देख देख कर जो आम लोग हैं उनमें भी जो टेम्परामेंट है वो ख़त्म होता जा रहा है और लोग छोटी छोटी बातों पर जो है इशू बनाकर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि इस कल्चर को किस तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है जी। इलियास साहब, ये जो सूरत हाल थी आज देखने के लिए बड़ी शर्मनाक थी कि इस तरह करना, इस तरह ये रवायत अगर इस तरह बन गई तो फिर आइंदा फिर हर जगह इस तरह ही हुआ करेगा, ये कि एक दूसरे के ऊपर हमला किया करेंगे। तो इसे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ये सिर्फ ये एक जगह नहीं सब जगह शुरू हो जाएगी। आइंदा फिर इलेक्शन भी होने, आम इंतखाबात जो होने हैं, जनरल इलेक्शन होना, उसमें तो फिर ये जगह गली गली महल्ले में जंग इस तरह छिड़ जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो आपस में आमने सामने हो जाएंगे। और इस तरह अक्सर पहले भी होता है, लेकिन ये जो अब जो सूरत हाल हुई है आज देखें, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को गाली गलोच और मार धाड़, ये सिलसिला ये ख़तरनाक है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, दोनों सियासी जमातों को चाहिए इस पर सोचें। देखिए बहुत अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। इनिशियली बिल्कुल मैंने जो इनिशियल वीडियो देखी थी वो बिल्कुल वन साइडेड थी। कुछ वीडियोस मैंने और देखी हैं तो उसमें मुझे लगा है कि अगर
वो जो लीडरशिप वहाँ खड़ी थी वो तहम्मुल का मुजाहरा करती तो शायद इस सिचुएशन से बचा जा सकता था। क्योंकि मैंने एक मंजर देखा था जिस दिन सेनेट इलेक्शंस थे, जी। ये फैसल जावेद को लोगों ने घेर के नारे लगा रहे थे और फैसल खामोशी से वहाँ से निकल गए, इसलिए बचत हो गई। ठीक है। जिम्मेदार बहरहाल लीडरशिप है। बहरहाल जी, जिम्मेदार लीड पर राय आप जान चुके हैं। दीगर एक्सपर्ट्स की भी आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।